Hello everyone. In this video, we'll be solving 2024 class 10th in Artificial Intelligence board question paper. So let us start. So the first question is, SMART method can be used to set goals to make you successful in your career and personal life. So what does A in SMART stands for? तो अगर हम SMART को expand करते हैं तो S is basically your specific, M is measurable, A is achievable, R is realistic and T is time bound. So achievable is the correct answer. Next question is, which of the following is not a key element of self management skill? तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का इसमें से कौन सा नहीं है? तो जिनका आंसर नो होगा वो होगा प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क, प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क, यस. नॉट taking feedback, no, this is not a part of the self management skill. Goal setting, yes. Staying updated about new practice, yes. So the correct answer is not taking feedback. Now, which of the following is a quality of successful entrepreneurs? Hardworking, yes. Resistance to change, no. Lazy, no. Less confident, no. So the correct answer is hardworking. The next question is, the most important software in any computer is the dash. This is the software that starts working as soon as we switch on a computer. तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले चीज ऑन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. Now, which of the following types of communication takes place when one individual addresses a large gathering? अगर बहुत सारी मतलब large gathering को वो कर रहा है, that is basically known as your public communication. Sixth question is your assertion and reasoning one. So organic farming technique, assertion is organic farming technique is an example of a green skill. Yes, that is essential for sustainable agriculture. Yes, so that is true. Now reason is organic farming technique prioritize environment friendly and sustainable practice such as using natural fertilizers, avoiding synthetic pesticides and promoting soil health. So yes, both assertion and reasoning both are true, and because दोनों ही organic farming के बारे में बात कर रहे हैं, so the correct answer is A. Both A and R is the correct explanation. Both A and R are true, and R is the correct explanation for A. Next question is, which of the following contributes to the efficiency of an AI project? So कंट्रीब्यूट कौन सी चीज करती है जिससे कि एआई प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी बढ़ सके? सो फर्स्ट इज हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, नो. रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डाटा, येस. सो इससे हमारी जो एआई प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है अगर हमारा डाटा रेलिवेंट होगा और ऑथेंटिक होगा. सी है मिनिमल प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, नो. लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्स, नो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर बी, दैट इज रेलिवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग. The next one is, this real life application of NLP is used to provide an overview of a news item or blog post. अब overview बता रहे हैं किस चीज का? न्यूज आइटम या blog post. overview है खाली, so that means summary create कर रहे हैं. Okay, so while avoiding redundancy from multiple sources and maximizing the diversity of a content obtained. So which is this application? So मैंने बताया ना कि जब वो overview create करें, so that means this is basically your automatic summarization. Now, the third one is, which of the following represent a machine that is smart but not considered artificial intelligence enabled? So let us see the options. तो मतलब जो smart है लेकिन AI नहीं है. So A is a robotic vacuum cleaner that can navigate and clean floors autonomously. अब लास्ट में एक वर्ड है autonomously. autonomously मतलब हो गया कि कोई उसको रिमोट से कंट्रोल नहीं कर रहा है, अपने आप वो चल रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज AI enabled, वो खुद डिसीजन ले सकता है. ओके. B is a chatbot that engages in natural language conversation and answers questions. So natural language conversation में वो अगर engage करके आपको आंसर दे सकता है, again that is AI. C is a smartphone with facial recognition for unlocking the device. जब भी हम facial recognition use करते हैं for unlocking the device, it uses deep learning. So again that is a part of the AI only. And D is a digital alarm clock that rings at a set time every morning. So digital alarm clock is not an AI. ठीक है. So the correct answer is a digital alarm clock that rings at a set time every morning. हमने set किया ना, अपने आप तो नहीं बज रही कि सुबह हो गई. So now that is basically your not an AI device. Next is, which of the following words represent an example of a lemma resulting from lemmatization for caring in context to natural language processing? अब caring का हमें lemma word बताना है. जब हम stemming और lemmatization करते हैं तो lemma के अंदर हम suffix तो remove करेंगे. That means caring में से अगर हम suffix remove करते हैं, ing remove हो जाएगा, so we get CAR only, car. तो वो तो स्टेम वर्ड है, लेकिन उसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू केयर. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज योर
care. Next question is intrapersonal intelligence is a concept that. Now एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो दो ह्यूमंस के बीच में, वेयर इज इंट्रापर्सनल इज ओनली अबाउट आवरसेल्फ. ठीक है, खुद के बारे में. सो लेट अस सी A1 measures an individual's ability to understand others' emotion and feeling. No, दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में है intrapersonal. So now B is assesses one's proficiency in mathematics and logical reasoning. नहीं, ये तो फिर हमारा mathematical intelligence हो गया. C is describes the level of awareness someone has. Self-awareness someone has. Yes, this is yours intrapersonal. Starting from realizing weakness, strength to recognize their own feelings. मतलब अपने बारे में जानना, अपनी strengths, अपनी weaknesses के बारे में जानना, that is your intrapersonal intelligence. So C is the correct answer. Let's see the D1 also. Evaluates an individual's spatial, navigation and visual skills. No, that is wrong. So the correct answer is C, that is describes the level of self-awareness someone has, starting from realizing weakness, strengths to recognize their own feeling. That is your intrapersonal intelligence. Fourth, last question is sixth one. For data science, usually the data is collected in the form of tables. Okay, these tabular data sets can be stored in different formats. Yes, we can store that in different formats. Which of the following format is not used for storing data in tabular format? So we can use CSV, we can use SQL, we can use spreadsheet, but we cannot use website for storing data in a tabular format. So the correct answer is websites. Now the next question is third ka first one. So dash is one of the parameter for evaluating a model's performance and is defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. Now fraction of positive cases. Now positive cases हमारा जैसे precision और recall दोनों के अंदर होते हैं. So but इसके अंदर बेसिकली हमारा होगा रिकॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, बिकॉज वी ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉल्स नेगेटिव केसेस इन रिकॉल. सो द करेक्ट आंसर इज रिकॉल. सेकेंड इज इन द एआई प्रोजेक्ट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स. तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल में सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग आता है, फिर डाटा एक्विजिशन आता है, फिर डाटा एक्सप्लोरेशन आता है, देन मॉडलिंग एंड फाइनली इवैल्यूएशन. सो द करेक्ट आंसर इज योर B1, that is problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling and finally evaluation. Third is dash is a concept to unify statistics, data analysis, machine learning and their related methods in order to understand and analyze actual phenomena with data. So the correct answer is, क्योंकि हम statistics और data analysis की बात कर रहे हैं, so this is basically your data science. Okay, now the next is in computer vision, which of the following task is used for multiple objects? सो देखो, एक तो सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होता है टास्क, एक होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए. सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए वी हैव क्लासिफिकेशन और दूसरा है क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए है वी हैव द इंस्टेंस सेगमेंटेशन. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है और एक है इंस्टेंस सेगमेंटेशन. सो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इसमें दिया ही नहीं हुआ, तो करेक्ट आंसर इज योर इंस्टेंस सेगमेंटेशन. नाउ फिफ्थ वन इज इन स्पैम ईमेल डिटेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड इज फॉल्स नेगेटिव. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. In spam email detection, which of the following will be considered as false negative? जब हम false की बात कर रहे हैं, इसका मतलब precision recall के साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब आंसर गलत दे रही है मशीन, कहीं ना कहीं ये हुआ. ठीक है, false मतलब हो गया कि मशीन जो है वो गलत आपको प्रिडिक्ट कर रही है कोई भी चीज. नेगेटिव का मतलब हो गया कि वो नो में आंसर दे रही है. ठीक है, so let us try and identify from ABCD. So first is when a legitimate email is accurately identified as not a spam. accurately identify हो गया तो वो तो true case हो गया ना, तो ये तो नहीं हुआ. Now when a spam email is mistakenly identified as legitimate. Now when a spam email, it says when a spam email is mistakenly identified. mistakenly मतलब हो गया कि मैच नहीं किया, false हो गया. identified as a legitimate मतलब कि this is not a spam, क्योंकि स्पैम ईमेल डिटेक्शन की बात कर रहे हैं. तो उसने जब मेल आया तो उसने बोला नो इट इज नॉट अ स्पैम, नो बोला उसने और मैच भी नहीं किया. तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर B1. फिर भी हम लोग एक बार C और D को देख लेते हैं. C इज व्हेन एन ईमेल इज एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्पैम. मैच कर रहा है तो ये तो गलत हो गया. ठीक है, व्हेन एन ईमेल मैच कर रहा है तो ट्रू केस हो गया ना, तो C होगा ही नहीं. D इज व्हेन एन ईमेल इज इनएक्यूरेटली, ये तो फॉल्स हो गया. लेबल्ड एज इंपॉर्टेंट, लेबल्ड एज इंपॉर्टेंट का मतलब हो गया कि यहां पे उसने उसको लेबल कर दिया कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट ईमेल, सो दैट मीन्स इट इज बेसिकली योर नॉट स्पैम. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
So B should be the correct answer. So that is when a spam email is mistakenly identified as legitimate. Now sixth one is, which of the following application, okay, is not associated with नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो इसमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन इट इज नॉट एसोसिएटेड विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो एनएलपी के साथ अगर देखते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, स्पीच रिकॉग्निशन भी होता है, स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल्स भी होता है. स्टॉक मार्केट एनालिसिस इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस. सो द करेक्ट आंसर इज स्टॉक मार्केट एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंफ्यूजन स्टेटमेंट 1 है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज एन इवैल्यूएशन मैट्रिक. नो, कंफ्यूजन मैट्रिक इवैल्यूएशन मैट्रिक नहीं है. It is basically a record keeping system. So statement 2 is, confusion metric is a record which helps in evaluation. Yes. So confusion metric is a record which helps in evaluation. That is true. So statement 1 is false and statement 2 is correct. So it should be the correct answer should be D1. That is statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. Okay. Now second is, which form of unsupervised learning does the following diagram indicate? अगर diagrams आपने ध्यान से देखे होंगे तो it is basically clustering. So the correct answer is clustering. Now bag of words is a dash model. So bag of word कौन सा मॉडल है? NLP मॉडल है, which helps in extracting features out of text which can be helpful in machine learning algorithms. So the correct answer is NLP. Okay. So the next question is, which of the following represents an example of a recommendation system? Now recommendation system में जैसे वेबसाइट रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, अपने आप ही वो आपको रिकमेंड करता है कि आपको ये डिस्प्ले होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे जाते हो तो अपने आप ही वो कंटेंट दिखाता है कि आप ये वीडियोस बहुत देखते हो तो यही कंटेंट आपको दिखाएगा. सो लेट अस ट्राई एंड आइडेंटिफाई रिकमेंडेशन सिस्टम इसमें कौन सा सही है. सो ए इज एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर दैट ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ क्लोथिंग ऑप्शंस. नो. A search engine that retrieves relevant web pages based on user queries. No. ठीक है, हमने क्वेरी खुद किया है तभी तो वो दे रहा है, तो उसने खुद तो रिकमेंड नहीं किया कुछ भी. ओके. सी इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट दैट डिस्प्लेस कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स फॉर प्रोडक्ट. नो, वो तो सिर्फ रेटिंग और वो कर रहा है, हमें तो कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा ना. लेकिन अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दैट सजेस्ट सॉन्ग एंड प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन यूजर लिसनिंग हिस्ट्री. मतलब कि उसने पहले क्या गाने सुने हैं उसके बेसिस पे अपने आप ही वो गाना उसको दे रहा है, सजेस्ट कर रहा है. तो जब सजेशन आ रहे हैं तो वो रिकमेंडेशन हो गया. तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज D1, अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दैट सजेस्ट सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन यूजर लिसनिंग हिस्ट्री. नाउ नेम एनी 2 सर्च इंजन्स. बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, याहू भी है, गूगल सर्च है, बिंग है. सो दीज आर योर सर्च इंजन्स. नाउ सिक्स्थ इज, व्हाट इज द प्राइमरी नीड फॉर इवैल्यूएटिंग एन एआई मॉडल्स परफॉर्मेंस इन द एआई मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस. सो प्राइमरी नीड क्या है फॉर इवैल्यूएटिंग? तो पहले देखते हैं, टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल. नहीं, इवैल्यूएशन होता है टेस्ट करने के लिए कि कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो ये तो गलत है. बी इज टू विजुअलाइज द डाटा, दैट इज डाटा एक्सप्लोरेशन. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. C is to assess how well the chosen model will work in future. Yes, to check कितना better वो perform करेगा future में. That is the primary need for evaluating an AI model performance. So C is the correct answer. Let's see the D as well. To reduce the amount of data used for training. No, that is also wrong. So the correct answer is the C. To assess how well the chosen model will work in the future. Now, question number 5. Assertion है, the term used to refer to the number of pixels in an image is resolution. ठीक है, जितने total number of pixels होंगे उसको हम resolution बोलते हैं. सही है बिल्कुल. And reason is, resolution in an image denotes the total number of pixels. Yes, it contains usually represented as height into width. ये गलत उन्होंने बोल दिया, height into width नहीं होता है. Resolution को represent करते हैं, it is always width into height, not height into width. तो ये गलत है. सो द करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. सो assertion is true whereas reasoning is false. So that means the correct answer will be A is true but R is false. That is your C1. ठीक है. So the correct answer will be your C1. Now next question is, when a machine possesses the ability to mimic human traits, that is make decision, predict the future, learn and improve on its own, it is said to have artificial intelligence. Okay, तो बहुत simple question था. Third one is statement 1. To evaluate a model's performance, we need either precision or recall. बिल्कुल सही है, या तो हमें precision चाहिए या recall चाहिए. ठीक है. When the value of both precision and recall is 1, statement 1 is correct. ठीक है, statement 1 हमारा जो है इसके अंदर वो सही है, this is correct. Let's say statement 2. When the value of both precision and recall is 1, the F1 score is 0. No, this is wrong. जब precision और recall 1 होगा तो F1 score भी क्या होगा? 1 होगा. ठीक है. So this is wrong. So statement 1 is correct, that is C1, but statement 2 is incorrect. Okay. Let us move to the next question.
द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज यूज टू अप्लाई फेस फिल्टर्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अब हमारा फेस फिल्टर्स लगाने हैं तो किस चीज़ का ये कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन है, आपका सिंपल है, कंप्यूटर विजन. ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज द 4Ws प्रॉब्लम कैनवास हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड टू गिवन प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्लियरली लिखा है नॉट, जो नहीं है प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम कैनवास का पार्ट. सो अगर हम ऑर्डर में देखते हैं तो हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, तो हमारे ये 4 होते हैं. When is not a part, so correct answer is when is not a part of the 4Ws problem canvas. Now sixth is which domain of AI is used for interacting with virtual assistant such as Siri and Alexa. बहुत simple, NLP, natural language processing. Okay, so all the objective questions are covered. Let us see the subjective questions. So जब हम subjective questions की बात करते हैं तो subjective questions में first हमारा आता है employability skill section. So we have these 5 questions. So students normally have to attempt any 3 out of these 5 questions. So let us see the questions. So the first question is give any 2 example of how individual choices and behaviors can contribute in achieving sustainable development. मतलब हमारे खुद की कोई चॉइस या बिहेवियर से हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो पहला तो भाई सिंपल है, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूसेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट. मतलब कि जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम मतलब यूज ही ना करें. दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको हम प्रॉपरली सेग्रीगेट करें. देन इज सेकेंड इज एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. सो जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कार पूलिंग करना, वॉक करना टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस. तो ये खुद की हमारी चॉइसेस हैं जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. Now next is list any 2 common misconceptions about entrepreneurship. There are many misconceptions. For example, entrepreneurs are born, not made. You need a lot of money to start a business. These are the 2 common misconceptions about entrepreneurs. Okay, next is what is the importance of time management in effectively dealing with stress. तो टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल प्ले करता है टू डील विद स्ट्रेस. Provide any one strategy for improving time management skill to reduce stress. So first is time management is important in effectively dealing with stress because it helps to prioritize the things you have to do. Because time management से हम अपने जो हमें काम करने हैं हम उनको prioritize कर सकते हैं कि ये हमें काम करने हैं. Okay. Then is one strategy for improving time management skill to reduce stress is remove waste and redundancy from work. जहाँ पे भी टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप रिमूव करो अपने एनवायरनमेंट में से. देन इज मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट डिलीजेंटली. आपने एक टाइम टेबल बनाया तो उसको फॉलो करोगे आप डिसिप्लिन तरीके से, देन यू विल बी एबल टू हैंडल दिस टाइम मैनेजमेंट और इससे आपका स्ट्रेस अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज मेंशन एनी 2 measures दैट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक टू प्रोटेक्ट द डाटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरसेस. तो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप ले सकते हैं ताकि वो अपने डाटा को बचा सकें वायरसेस से या फिर थेफ्ट से. सो फर्स्ट इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. फर्स्ट स्टेप. इंस्टॉल एंड रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड होगा तो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग योर सिस्टम इन्फेक्टेड फ्रॉम द वायरसेस. ओके. Now next is the method of communication that you choose could affect the relationship with your peers, superiors and customers. Now write the 4 factors on the basis of which you can choose the right method of communication. तो हमें 4 तरीके बताने हैं जिससे हम सही तरीका अपना सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए. So first is we have to identify the target audience, then उसका cost क्या होगा, what kind or type of information we want to convey, and finally कितना वो urgent है या priority क्या है उस चीज़ की. So these are the 4 of the factors on the basis of which you can choose the right method of communication. Okay. So now AI skill की हम बात करते हैं तो AI skill में again we have these 6 questions and students only have to attempt any 4 and each question needs to be attempted in 20 to 30 words each. Okay. Now question number 11 is differentiate between machine learning and deep learning. So ये मतलब आप देखोगे कि previous 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी था related to machine learning and deep learning 4 marks में. यहाँ पे भी आ गया है 2 marks में machine learning और deep learning में difference. तो बिल्कुल क्लियर आपको होना चाहिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस. तो आई हैव क्रिएटेड अ टेबल सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. सो पहले देखते हैं मशीन लर्निंग की डेफिनेशन. सो इट इज अ सबसेट ऑफ एआई दैट एनेबल्स मशीन टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक डिसीजंस विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग. मतलब कि वो अपने आप क्या कहते हैं लर्न कर सकती है डाटा से और खुद डिसीजन ले सकती है. ठीक है, एआई का सबसेट है.
नाउ डीएल क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ एमएल. तो एमएल का सबसेट है ये. आपने डायग्राम जो देखा है उसमें सबसे पहले एआई है पूरा बिगर पिक्चर के अंदर, देन वी हैव द सबसेट ऑफ एआई इज योर एमएल, एंड एमएल के अंदर डीएल है. तो डीएल इज व्हाट? इट इज अ स्पेशलाइज्ड सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. तो डीएल के अंदर वी यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू मॉडल एंड प्रोसेस कॉम्प्लेक्स डाटा पैटर्न्स. तो जहां पे कॉम्प्लेक्स आपके डाटा होता है उसको उस पर काम करने के लिए वी हैव दिस डीप लर्निंग, मतलब मशीन को ट्रेन ज़्यादा करने के लिए वी यूज दिस डीप लर्निंग. नाउ डाटा डिपेंडेंसी की बात करते हैं. तो मशीन लर्निंग स्मॉलर डाटा सेट पे भी काम कर लेती है. तो वर्क्स वेल विद स्ट्रक्चर्ड एंड स्मॉलर डाटा सेट, whereas डीप लर्निंग में इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर इफेक्टिव लर्निंग. देन इस फीचर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इट रिक्वायर्स मैनुअल फीचर सिलेक्शन एंड इंजीनियरिंग, वेयर डीप लर्निंग में ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपने आप ही फीचर कि भाई मेरे को उसने अपने लर्न कर लिया तो अपने आप ही वो फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा बिकॉज उसमें न्यूरल नेटवर्क यूज हो रहा है. ठीक है. ना प्रोसेसिंग टाइम एमएल इज फास्टर क्योंकि उसका मॉडल सिंपल है, लेकिन डीएल जो है वो कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि वो न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहा है. तो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू योर मशीन लर्निंग. देन इज एग्जाम्पल देखते हैं. तो मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया स्पैम फिल्टरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल्स हो गए. लेकिन डीप लर्निंग की बात करते हैं तो इमेज रिकॉग्निशन हो गया, फेस लॉक हो गया हमारे फोन में, दैट यूज डीएल. देन स्पीच प्रोसेसिंग हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ योर डीप learning. So I hope now you have clearly understood the difference between machine learning as well as your deep learning. In summary, deep learning is more advanced form of machine learning, capable of handling complex tasks with minimal human intervention but requiring significant data and computation. मतलब कि इसमें आपको जो डाटा होगा ना वो लार्ज डाटा चाहिए. न्यूरल नेटवर्क में आप देखते हैं ना, तो न्यूरल नेटवर्क में क्या देखते हैं, जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना बेटर वो परफॉर्म करता है. ठीक है. ओके. सो व्हाट आर द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बॉट एंड स्मार्ट बॉट? अगेन डिफरेंस क्या है स्क्रिप्ट बोट और स्मार्ट बोट में? सो डेफिनेशन, स्क्रिप्ट बोट, बोट्स दैट फॉलो प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट, मतलब पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, रूल लिखे हुए हैं, उन्हीं को फॉलो कर रही है. स्मार्ट बोट में एआई पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बोट है, वो अपने आप लर्न करते हैं, अडेप्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड अपने आप करते हैं इंटेलिजेंटली. ठीक है. कोई उसके लिए रूल डिफाइंड नहीं है. फंक्शनैलिटी, एग्जीक्यूट्स फिक्स्ड कमांड विदाउट डेविएशन, जो कमांड है फिक्स उतना ही वो एग्जीक्यूट करेगा, कोई उसमें डेविएशन नहीं होगा स्क्रिप्ट बोर्ड के साथ में. लेकिन अगर हम स्मार्ट बोर्ड की बात करें तो इट यूजेस मशीन लर्निंग और एनएलपी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड डायनामिकली. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी. सो स्क्रिप्ट बोर्ड्स आर वेरी लिमिटेड टू प्री प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज एंड वर्क फ्लोज, whereas स्मार्ट बोर्ड्स कैन अडेप्ट बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, लर्निंग एंड कॉन्टेक्स्ट. whereas स्क्रिप्ट बोर्ड्स की लर्निंग एबिलिटी देखते हैं, कोई लर्निंग एबिलिटी नहीं है, नो लर्निंग कैपेबिलिटी, ऑपरेट्स ऑन स्टैटिक लॉजिक. स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं यूजिंग एआई एंड पास्ट इंटरेक्शंस. एंड यूज केसेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं स्क्रिप्ट बोर्ड्स और स्मार्ट बोर्ड्स. तो स्क्रिप्ट बोर्ड्स जो हैं ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज, बेसिक कस्टमर सर्विस, कोई शेड्यूल टास्क आपने किया हुआ है वो, दैट इज बेसिकली दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल वेयर स्क्रिप्ट बोर्ड्स आर यूज्ड. वेयर स्मार्ट बोर्ड्स आर यूज्ड इन एडवांस चैट बोर्ड्स, जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया. ठीक है. and virtual assistant like Siri, Alexa, self-learning customer support. These are the areas where these smart boards are used. Okay, let us move to the next question. So what do you mean by evaluation of an AI model? Evaluation होता क्या है? So also explain the concept of overfitting with respect to AI model evaluation. तो सबसे पहले evaluation of an AI model refers to the process of assessing how well the model performs on a given data set. किसी डाटा, अगर हम कोई डाटा सेट दे दें तो उस पर वो कितना बेटर परफॉर्म करेगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा. सो दैट इज योर इवैल्यूएशन ऑफ एन एआई मॉडल. नाउ ओवरफिटिंग क्या होता है? ओवरफिटिंग ऑकर्स व्हेन एन एआई मॉडल लर्न्स द ट्रेनिंग डाटा टू वेल, इंक्लूडिंग नॉइज एंड इररिलेवेंट डिटेल्स, मेकिंग इट परफॉर्म पुअरली ऑन न्यू डाटा. तो ओवरफिटिंग हो गया कि जो हमने ट्रेनिंग उसको दिया है तो उस ट्रेनिंग के अंदर वो इतना ज़्यादा उसने सीख लिया कि उसके अंदर कुछ इररिलेवेंट डाटा है ना, उसकी डिटेल भी उसने कैप्चर कर ली है. तो वो क्या होगा कि नए डाटा के साथ तो वो पुअरली परफॉर्म करेगा, लेकिन पुराने डाटा के साथ में जिससे वो ट्रेन किया गया उसके साथ वो सही परफॉर्म करेगा. सो दिस मीन्स द मॉडल हैज लो बायस बट हाई वेरिएंस लीडिंग टू पुअर जनरलाइजेशन. सो दैट इज योर ओवरफिटिंग मॉडल. एंड साइंस देखते हैं कि ओवरफिटिंग का कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल ओवरफिटिंग मॉडल है. तो हाई एक्यूरेसी ऑन ट्रेनिंग डाटा, ट्रेनिंग जो डाटा दिया है उस पर तो वो सही उसके प्रेडिक्शंस आ रही हैं, बट लो एक्यूरेसी ऑन टेस्ट डाटा. दूसरा, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज टू हाई कैप्चरिंग अननेसेसरी पैटर्न्स.
मतलब कि वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि अननेसेसरी पैटर्न जो जरूरत भी नहीं है वो भी उसने कैप्चर कर रखे हैं, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ एन ओवरफिटिंग मॉडल. नाउ for a health organization, objective of predicting disease outbreak and efficiently allocating resources through the analysis of medical records, would you recommend using supervised learning or unsupervised learning? अब एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजीज आउटब्रेक कोई होती है तो उसकी प्रेडिक्शन के लिए वो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उसमें वो सुपरवाइज लर्निंग मॉडल यूज़ करें या अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल यूज़ करें. एंड एक्सप्लेन योर चॉइस ब्रीफली. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग विल बेस्ट फिट. द रीजन इज वी ऑलरेडी हैव मेडिकल रिकॉर्ड्स, वी हैव कि भाई उनका क्या सिम्टम्स हैं उस डिजीज के, तो ये सब सिम्टम्स वगैरह हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो लेबल्ड डाटा है वो. सो फॉर अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक एंड एफिशिएंटली एलोकेटिंग रिसोर्स थ्रू मेडिकल रिकॉर्ड्स एनालिसिस, आई वुड रिकमेंड सुपरवाइज लर्निंग एज द प्रिफर्ड मशीन लर्निंग अप्रोच. क्यों? तो पहला है लेबल डाटा अवेलेबिलिटी. So medical records often contain labeled data such as patient symptom, test result, diagnosed results, diseases. Supervised learning model can use this historical data to predict future outbreak. Okay, so this was this was the complete answer for this question. Let us move to the next question. So what role does data play in AI based application? AI based applications में data का क्या role है? Name any two source of online data collection for building any AI based application. तो डाटा का क्या काम है? So data plays a crucial role in AI based application as it serves as the foundation for training. क्योंकि डाटा नहीं होगा तो आप मशीन को ट्रेन कैसे करोगे, ठीक है. Validating and improving AI models. The quality, quantity and relevance of data directly impact the accuracy and effectiveness of AI model. तो data should be authentic and relevant. बार बार ये बात आती है ना, तो सही होना चाहिए और relevant होना चाहिए, आपके AI model से relevant होना चाहिए. So two sources of online data collection for AI application is, first is government open data portal like data.gov.in. आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके वहाँ से डाटा फेच कर सकते हो. दूसरा है APIs फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि ट्विटर API है, गूगल डाटा सेट सर्च है, केगल एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है. देन इज ओपन वेदर API. सो यहाँ से भी आप अपना डाटा फेच कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रे स्केल एंड RBG इमेजेस. सो नाउ ग्रे स्केल की बात करते हैं, तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एन इमेज दैट कंटेन शेड्स ऑफ ग्रे रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट. सिर्फ एक ही शेड होगा, ब्लैक से लेके व्हाइट तक का बीच में शेड होगा और कुछ नहीं होगा. दैट इज योर ग्रे स्केल इमेज. लेकिन RBG इमेज के अंदर एन इमेज दैट यूज 3 कलर चैनल्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. देन इज कलर डेप्थ ओनली 1 चैनल. RGB इमेजेस में 3 चैनल्स. पिक्सल वैल्यू ग्रे स्केल में 0 to 255. लेकिन RGB इमेज में भी 0 to 255 है, लेकिन तीनों चैनल का एक साथ है. मतलब एवरी पिक्सल विल हैव 3 values ranging from 0 to 255. okay, फाइल साइज स्मॉल है बिकॉज उसकी इंटेंसिटी या पिक्सल्स कम होते हैं. RGB इमेज लार्ज क्योंकि हर पिक्सल के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो रही है. ना यूसेज यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, जैसे आपका एक्सरेज हो गए तो वहां पे यूज होते हैं, ठीक है. देन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड एज डिटेक्शन, तो यहाँ पे ग्रे स्केल इमेजेस यूज होते हैं. लेकिन RGB इमेज कहाँ यूज होती है? यूज्ड इन कलर फोटोग्राफी, डिजिटल डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में RGB इमेजेस यूज होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए. 5 क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3. सो व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क्स? ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल द लेयर्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क. तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग. अब देखो ना, AI, ML और जो DL है, डीप लर्निंग. सो दैट डीप लर्निंग इज ओनली द न्यूरल नेटवर्क. So that mimics the human brain's functioning to recognize patterns, process data and make decision. So it consists of interconnected neurons organized in layers which help process and learn from data. So that is your neural network. So a neural network is typically composed of 3 main layers. So हमारा है पहला input layer होता है, first layer that receives raw data, जैसे इमेज, टेक्स्ट या नंबर कुछ उसने इनपुट लिया, दैट इज योर इनपुट लेयर. देन इज फॉर एग्जांपल हिडन लेयर. अब वो जो हिडन लेयर है उसके अंदर सब लेयर्स होती हैं, दैट इज व्हाई ब्रैकेट में यू कैन सी दिस 1 or more layers. सो दीज लेयर्स प्रोसेस द इनपुट डाटा बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड फाइनली वी हैव द आउटपुट लेयर, जो आपका फाइनल रिजल्ट या प्रेडिक्शन जो मॉडल ने दिया वो आपको आउटपुट देती है. So there are 3 layers in a neural network, that is input layer, hidden layer and output layer. And hidden layer have 1 or more layers depending upon the complexity of the data. Next is give any 4 example of applications of AI that we see around us.
बहुत सारी एप्लीकेशंस है, 4 देनी है कोई भी। तो फर्स्ट इज वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन, ये आपको रिकमेंड करते रहते हैं आपके कि ये आप मूवी देख सकते हो, ये आप गाना सुन सकते हो, ठीक है, ये आप रील देख सकते हो। तो दिस आर बेसिकली योर रिकमेंडेशन सिस्टम। एंड देन स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन हो गया, सीसीटीवी, एआई मॉनिटरिंग हो गया। तो दिस इज ऑल्सो कॉमन एग्जाम्पल दैट वी सी अराउंड अस। देन इज चैट बॉट्स एंड कस्टमर सपोर्ट, जैसे चैट बॉट की बात करें तो जैसे चैट जीपीटी हो गया, ठीक है। So these are 4 examples of the applications of AI that we see around us. Okay. Now next is your, again this particular question, that is 18th, this is your 19th question. So this, consider the following 2 documents. Okay, there are 2 documents given and we have to implement all the 4 steps of bag of words. Again 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेंज थे, तो उसको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ढंग से। और जब इस तरीके के ऐसे आपके पैटर्न आते हैं ना कि भाई रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो सकते हैं आगे फ्यूचर वाले एग्जाम्स में भी। सो इसको अच्छी तरीके से करना है आप लोगों को। नाउ देयर आर 4 स्टेप्स इन द बैग ऑफ वर्ड्स एंड द फर्स्ट स्टेप इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो वी हैव सेंटेंस सेगमेंटेशन, देन टोकनाइजेशन, and then after that converting into lowercase, and then also removing stop words, special characters and numbers, and finally stemming and lemmatization. लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट 1 और 2 में डाटा बहुत कम है, तो ना तो हम स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन करेंगे, ना हम इसके अंदर क्या कहते हैं स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेंगे। विल नॉट रिमूव द स्टॉप वर्ड्स, दो विल रिमूव द स्पेशल कैरेक्टर्स बट विल नॉट रिमूव द क्या कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपका टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मिला, दैट इज ML इन स्मॉल, एंड इज द सेकेंड token, DL is the 3rd token that we get, R is the 4th token, part is 5th token, OF is 6th token and AI is the 7th token. तो 7 टोकन हमें मिल गए हैं डॉक्यूमेंट 1 से। डॉक्यूमेंट 2 की बात करते हैं तो DL और is a subset of ML, तो ये हमें टोकन्स मिल गए। फुल स्टॉप हमने रिमूव कर दिए क्योंकि वो स्पेशल कैरेक्टर आ गया। ओके, स्टेप 2 में हम डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी का मतलब हो गया इसमें से यूनिक वर्ड निकाल लेते हैं। अब यूनिक वर्ड का मतलब हो गया कि एक बार हमने वर्ड वो लिख लिया तो वो रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ML आ गया, तो हमने ML ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ML ले लिया। देन एंड आ गया, एंड ले लिया। देन अगेन DL आ गया, हमने DL भी ले लिया। देन R आ गया, हमने R भी ले लिया। देन पार्ट आ गया, हमने पार्ट भी ले लिया इसके अंदर। देन ऑफ आ गया, हमने ऑफ भी ले लिया। और AI आ गया, हमने AI भी ले लिया, ठीक है। अब सेकंड में आते तो DL ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे ये आ गया ना DL, तो रिपीट नहीं करेंगे इसको। इस की बात करते हैं तो इज नहीं है तो इज ले लिया हमने। नहीं आया है तो भी ले लिया। सबसेट नहीं आया ले लिया। ऑफ ऑलरेडी आ चुका है ऑफ तो नहीं लिया, और ML ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं लिया हम लोगों ने। सो दैट मीन्स व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टेकन दिस इज हियर, इसमें से इज और सबसेट लिया है, बाकी DL ऑफ और ML को नहीं लिया है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ डिक्शनरी। सो एक बार आपकी डिक्शनरी बन गई, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट बेसिकली नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली योर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ईच डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाएंगे, तो उसके लिए आप पहले टेबल बनाओगे। अब टेबल बनाओगे तो पहले उन टेबल में जो डिक्शनरी जितनी वर्ड्स आए हैं वो सारे लिख लोगे, ML एंड DL आर पार्ट ऑफ AI इज अ सबसेट, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट 1 में देखेंगे कि वो वर्ड ML कितनी बार आ रहा है। सो वी नोट दैट ML इज 1, एंड इज 1, DL इज 1, R इज 1, पार्ट इज 1, एंड बाकी 0 0 0। फिर उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट 2 जो है उसके लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है, और फिर से अगेन नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 2 में अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो DL आ गया ना, तो DL हमारा एक बार आ रहा है, ठीक है। देन इज हमारा एक बार आ रहा है, देन एक बार, सबसेट एक बार, ऑफ एक बार, ML एक बार, और बाकी जो नहीं आए वो हम लोगों ने 0 0 0 प्लेस कर दिया। सो दिस इज हाउ वी enter the values, and then finally once that is being done we move on to the next step, and that is step 4, that is create document vector for all the documents। सारे डॉक्यूमेंट के लिए इकट्ठा बनाना है, तो एक ही हम लोगों ने टेबल बनाएंगे और उस टेबल में उसको समराइज कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फाइनली आप टोटल नीचे लास्ट में आप कर दोगे। सो जो टोटल आपका आया दैट इज बेसिकली नोन एज योर बैग ऑफ वर्ड्स। So I hope this you have understood this particular question. Okay, now let us move to the next question.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ्स, फिगर 1 एंड फिगर 2, दो फिगर्स इसमें दिए हुए हैं, दैट डेमोन्स्ट्रेट द टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ईच मॉडल गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। अगर हम फिगर 1 की बात करते हैं इसके अंदर, सो द फिगर 1 इज बेसिकली योर क्लासिफिकेशन मॉडल एंड फिगर 2 इज योर रिग्रेशन मॉडल, और दोनों सुपरवाइज मॉडल हैं क्योंकि, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन होता क्या है उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। सो क्लासिफिकेशन मॉडल आर लेबल्ड एंड डिस्क्रीट, ठीक है, अलग अलग उसमें डाटा होगा, एक तरीके का डाटा नहीं होगा, लेबल्ड होगा, अलग अलग टाइप का डाटा होगा। टू प्रेडिक्ट डिस्क्रीट कैटेगरीज और लेबल्स, the output variable in classification is categorical, that is yes or no, spam or not spam, dog or cat. So example, email spam detection हो गया, given emails content on a classification model can predict whether email is spam or not spam. तो ये कुछ example हो गया। regression जो model होगा वो labeled होगा लेकिन discrete नहीं होगा, अलग अलग तरीके का नहीं होगा, एक ही तरीके का डाटा होगा, तो वो continuous होगा। the output variable in regression is continuous, जैसे price, पूरा प्राइस, ओनली प्राइस, वन टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। देन इज टेम्परेचर, ओनली वन टेम्परेचर, मतलब वन नहीं, मतलब देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूज बट सारी वैल्यूज जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दूसरी चीज नहीं है। सिमिलरली हाइट हो गया, सैलरी हो गया। तो एग्जांपल हो गया हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, सो गिवन फीचर्स लाइक द साइज ऑफ द हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम एंड लोकेशन, आर रिग्रेशन मॉडल कैन प्रेडिक्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए हाउस। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल, फाइन। So let us move to the last question. Again confusion matrix वाला question आ गया, ठीक है। तो a binary classification model has been developed to classify news articles as either fake news or real news. तो ये confusion matrix बना है कि ये fake news है कि real news है, yes no के basis पे उन्होंने value डाली हुई है। So the model was tested on a data set of 500 news articles and the resulting confusion matrix is as follows. Now इसमें सबसे पहली जो चीज़ है we have to mark कि कौन सा ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो मैंने आपको शुरू में आपको समझाया था कि लास्ट क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया था कि ये दोनों जो हैं, ये डायगोनली जो हैं, ये दोनों ट्रू केसेस होंगे। ये जो ट्रू है दैट मीन्स प्रेडिक्शन रियलिटी के साथ मैच कर रहा है, तो ये दोनों ट्रू केसेस है, ठीक है। ये आसान सा तरीका है कि ये दोनों डायगोनल को मैच कर लो, ये दोनों ट्रू केसेस हो गए। अब क्या करना है, जो येस लिखा हुआ है ना, तो येस इज बेसिकली योर पॉजिटिव, और जो नो लिखा है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, पूरी लाइन नेगेटिव है, ये पूरी लाइन पॉजिटिव की हो गई, ये पूरी लाइन पॉजिटिव की हो गई। तो अब यहां पे ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, तो ये सारे फिल हो गई वैल्यूज। नाउ वंस यू फिल दोज वैल्यूज, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। सो दिस इज योर टीपी, एफपी, एफएन एंड टीएन। नाउ अब ए पार्ट आता है, हाउ मेनी टोटल केसेस आर ट्रू नेगेटिव, कितने ट्रू नेगेटिव केसेस हैं अबव सिनेरियो में। सो टोटल ट्रू नेगेटिव केसेस आर 420 आंसर। नाउ कैलकुलेट प्रिसिशन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। अब प्रिसिशन का फॉर्मूला अब बताओ क्या था। सो इफ यू डू रिमेंबर, प्रिसिशन इज बेसिकली, प्रिसिशन और रिकॉल दोनों के अंदर हमारा टीपी आता है ऊपर। सो प्रिसिशन में भी टीपी आएगा और रिकॉल में भी टीपी आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम इसमें भी टीपी और यहां पे भी टीपी अपॉन करके यहां पे भी टीपी आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आप राइट में मूव करोगे, यू मूव टुवर्ड्स द राइट, दैट इज प्लस एफपी करोगे इसमें, और रिकॉल के अंदर आप डाउन मूव करोगे, दैट इज एफएन यूज करोगे। सो दिस इज हाउ यू गेट प्रिसिशन एंड रिकॉल फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला फॉर द प्रिसिशन इज टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। वैल्यूज इनपुट करेंगे, टीपी इज 45 अपॉन 45 प्लस 15 एंड देन यू गेट 45 अपॉन 60, उसको सिंप्लीफाई करो, सो यू गेट 3/4 एंड उसको डिवाइड करोगे तो यू गेट 0.75। रिकॉल की बात करते हैं, दैट इज टीपी अपॉन टीपी प्लस एफएन, दैट इज योर, इफ यू पुट द वैल्यू यू गेट 45 अपॉन 45 प्लस 20 एंड 45 प्लस 20 is 65, so you get 45 upon 65. And once you do that, just simplify that. So 5 9s आपका 45 हो गया and 5 into 13 आपका 65 हो गया, so you get 9/13, and if you simplify again, simplify it and get into decimals, you get 0.69. So after that, the F1 score is twice of precision into recall upon precision plus recall, that is 2 into 0.75 into 0.69 अपॉन में 0.75 प्लस 0.69। तो ऊपर वाला अलग से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाला ऐड कर लो, एंड आफ्टर दैट जस्ट डिवाइड इट, यू गेट 0.71। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में भी बताया था कि जो आपका प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर की वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी। 1 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं गलत लिखा हुआ है, उसको रेक्टिफाई करो।
ठीक है. So this is the end of the question paper. So I hope you would have understood this, and with this, very thank you so much.